ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج ہمارا نوجوان علماء سے گزارش کرتے نظر آ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھا سا بزنس ہو جائے، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یعنی کہ آج قوم مسلم بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی فائل روزانہ لے کر کے جاتے ہیں اور منہ اتار کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک طرف تو بیماریوں نے توڑ دیا، ایک طرف تو اللہ اکبر روزی روٹی کے مسائل ہے، ایک طرف تو اولاد کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جن کو اولاد ہیں، اولاد باغی ہیں، اولاد بغاوت کر رہی ہے، اولاد جن کو نہیں ہے وہ تو اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اور جن کو اولاد ہیں وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے یوں رو رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک ماں باپ کہتے ہیں اگر پیدا ہو کے مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، اولاد ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹیاں ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹے ماں باپ کو رلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر گھر جہنم کدا بنا ہوا ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ اگر مسائل کا ذکر کریں تو مسائل کا ذکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ یہ گھنٹے بھر کی محفل کی کیا حیثیت ہے؟ غرض کے روزی روٹی ایک طرف، صحت کا معاملہ ایک طرف، بچوں کے رشتوں کے معاملے ایک طرف، اور اس کے بعد پوری دنیا کو ظالم حکمرانوں نے اپنے اندر جکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی ایک ملک کی بات کیا کریں، اٹھتے ہوئے جنازے اور سسکتی ہوئی لاشیں، اللہ اکبر، نوجوان بچیوں کا بیوہ ہونا، ننھے بچوں کا ماں کی گود کے اندر دم توڑنا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہی مسائل ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک ملک میں ابھی چند دنوں پہلے جو انقلاب کی آواز اٹھی ہے، آپ وہاں کی جو کلپیں دیکھ لیں، کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جانور کاٹنے والی مشینوں سے انسان کے سر کاٹنے کی داستان سامنے آئی ہے۔ اللہ اکبر، جیلوں کے اندر ننگے انسانوں کو رکھا جاتا تھا، اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہے، اور بھی چیزیں۔ اللہ اکبر، آخر مجھے بتاؤ یہ مصیبتوں سے نجات کیسے ملے؟ اس لیے کہ مرض کا دکھڑا بہت رو چکے، اب اس دکھڑے سے نجات کیسے ملے؟ غربت سے نجات کیسے ملے؟ بیماریوں سے نجات کیسے ملے؟ ظالم حکمرانوں سے نجات کیسے ملے؟ در در بھٹکنے سے نجات کیسے ملے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ خالق آسمان نے اپنے محبوب آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت پر دین حق کو نازل کیا قرآن کی شکل میں، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قرآن رہنمائی کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا کی کتابیں فرسودہ ہو سکتی ہے، قرآن کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیم ہر وقت نہیں ہے، ہر زمانے میں نہیں ہے، ہر دور میں نہیں ہے، ہر عصر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مسائل کتنے ہی ہو قرآن اس کا جواب اور حل پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ تو قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر واقعی مسائل کا حل چاہتے ہو اور سنجیدہ ہو اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں، جو مصیبت آئے، جو مصیبت تم پر آئے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ اکبر، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے
प्यारे हबीब आलिमे मा काना व मा यकून मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जो बयान फरमाया, अब जरा तवज्जो से सुनना। मेरी कौम के जवानों, अपने मसाइल का हल सियासी लीडरों के दरवाजों पर नहीं है, अपने मसाइल का हल सिर्फ विर्द वज़ाइफ में नहीं है। मैं अहले सुन्नत के स्टेज से दर्जनों मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ विर्द वज़ाइफ में अपने मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ तावीज़ात में अपने मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ जज्बाती नारों में मसाइल का हल नहीं है। कुरान ने हल पेश किया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, वो तुम्हारे जराइम की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तशरीह करते हुए, इसकी तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे बदन में जो खुजली होती है, तुम्हारा जो बदन खुजाता है वो भी गुनाह की वजह से खुजाता है। तुम्हारी आंखें जो फड़कती है, आप आमतौर पर हमारे इलाके के अंदर लोग कहते हैं दाईं आंख फड़केगी तो खुशी मिलेगी, बाईं आंख फड़केगा तो गम मिलेगा। याद रखना, आंखों का फड़कना खुशी और गम से ताल्लुक नहीं रखता। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, आंखें गुनाहों की वजह से फड़कती है, कांटा गुनाहों की वजह से चुभता है। अल्लाह अकबर, पता चला जो भी मुसीबत है वो गुनाह की वजह से है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, जो तुम पर हुक्मरां मुसल्लत होते हैं वो भी तुम्हारे आमाल की वजह से होते हैं। अब आप मुझे बताएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजी की तंगी गुनाह की वजह से, जिस्म की बीमारी गुनाह की वजह से, जिस्म की खुजली गुनाह की वजह से, पैरों में कांटा चुभना गुनाह की वजह से, लाइट बंद हो जाए गुनाह की वजह से, चिराग गुल हो जाए गुनाह की वजह से, यहां तक कि अल्लाह अकबर सवारी में नुकसान भी गुनाह की वजह से होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर में ये कारें तो नहीं थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सवारी में नुकसान गुनाहों की वजह से होता है। मतलब अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है तो हमसे कोई ना कोई गुनाह हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। उससे रोशनी लेकर हम ये बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या खुजली भी गुनाह की वजह से? इसका मतलब अगर हदीस पर नजर करें तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे तो उसको खुजली भी नहीं आ सकती। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसका चिराग भी नहीं बुझ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे वो कभी अज़ाब इलाही के हवाले से बीमारी में गिरफ्तार नहीं हो सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे कोई जालिम हुक्मरान उस पर मुसल्लत नहीं हो सकता। ये जो कुछ है हमारे गुनाहों की वजह से है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसाइल पर रोना रोने वालों, अपनी रातों का जायजा तो लो, हम रातें किस तरह गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना हम पहले तो बादशाह थे ना। अल्लाह अकबर। यही मुल्क हिंदुस्तान है। कमोबेश 1000 साल तक के इसी मुल्क हिंदुस्तान पर तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पुरखों ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। जो आज आंखें दिखा रहे हैं ये कासे गदाई लेकर के खड़े रहा करते थे। आप कहते हैं क्यों? हम पहले बादशाह थे और आज हम यहां पर गुलाम है। गुलाम उसकी वजह क्या है? तो मैं कहता हूं देख लो, उस वक्त तक तुम बादशाह थे। अल्लाह अकबर। अगर तुम बादशाह बन भी जाते थे तो शमसुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम तहज्जुद गुजार हुआ करते थे। तब तक तुम्हारा बादशाह तहज्जुद गुजार था, तब तक तुम इज्जत के साथ जी रहे थे, तुम बादशाह बन के जी रहे थे, दुनिया तुम्हारी गुलामी कर रही थी। और आज तहज्जुद तो दूर की बात है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए भी सिर्फ 2 रकअत के लिए आते हो। मुझे बताओ, अल्लाह के बंदो अपनी अमाल का जायजा लो। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश वो बादशाह है जिसने 4 औरतों के अलावा 5वीं किसी औरत को नजर भर करके नहीं देखा। आपसे पूछता हूं, आज 16, 17 साल
साल के लड़के जिना की फिल्में देख रहे हैं, औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं, तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? याद रखना, दुनिया ने दुनिया में किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। अगर तुम अल्लाह के खौफ से रोने लग जाओ, आंखों में आंखें डाल करके इसलिए बात की जा रही है, तुम्हें गुलाम इसलिए बनाया जा रहा है, तुम्हें तबाह इसलिए किया जा रहा है कि अपनी रातों को देखो। हाय वो दिन गुजर गए, मुसलमानों के जवान रातों को अल्लाह के खौफ से मुसल्ले पर रोते थे तो सुबह के वक्त अल्लाह इतनी इज्जत देता था, आंखों में वो चमक देता था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। जब से तुम्हारे जवानों ने जिना की फिल्में देखकर आंखों को आवारा किया, आंखों को गंदा किया, आंखों को गलीज किया, आज देखो हालात क्या हो रहे हैं। रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हो। कल तक तुम दुनिया को पाला करते थे, जब तक गुनाह से बचा करते थे, आज तुम लोगों के टुकड़ों पे पलने की बात कर रहे हो। याद रखना, जब तक गुनाह करते रहोगे, बेचैनियां बेकरारियां तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक देती रहेगी। आज तुम ये कहते हो हमारी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह अकबर। जो बाप अपनी बेटी को आवारगी से न बचा सके, उसके लिए दरवाजे बंद न होंगे तो किसके लिए होंगे? यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। यहां ऐसी बेटियों ने भी जन्म लिया है कि जिसके अल्लाह अकबर, जिसकी अजमत के डंके आज तक अर्ज़े हिंद पर बजते नजर आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है औरंगजेब के घर में एक बेटी ऐसी थी जिसके लिए अल्लाह अकबर, जिसके इल्म से मुतासिर होकर ईरान से एक वफ्द चला और कहा वो लड़की का इल्म इतना अजीम है, हम उससे मुलाकात करेंगे। उस लड़की ने अपना तखल्लुस मख्फी रखा था। उसने कहा मैं मर्दों से मुलाकात नहीं करती। अल्लाह अकबर। अगर मुझसे मुलाकात करना है तो मेरी शायरी पढ़ ली जाए, जो मेरी शायरी को पढ़ लेगा वो मुझे उसके अंदर पा लेगा। लेकिन आज हमारी बेटियां गैरों के सामने खुली है, वलीमों में खुली है, बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। अल्लाह अकबर। कुल मिलाकर इख्तिसार के साथ बात बस इतनी करनी है, जब तक गुनाह करते रहोगे कहीं अमान नहीं मिलेगी। जहां गुनाह है वहां फना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।